Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography and what is our topic today? Policy on conservation of resource. There is a most important point arrive here. Policy on conservation of resource. With the growing convenience of environment conservation, the efficient use of resource has become important for a developing country like India. There is an important point here. The source has become important for a developing country like India. We have to be increasing our R&D, research and development. There is an important point here, increasing of research and development here, effort to the exposure of the new resource. Device is a technology to the minimize best and conserve no renewable resource. The government of India has formulated several policy and program to the implement for conservation of our biotic resource. The first here, a policy here, a Ministry of Forest and Environmental was created at union level in a country. By now, all the state government have also created a independent Ministry of Forest and Environment. There is a most important point here. Union level in a 1980 is to give to high priority to issue of relative forest and environment in a country. There is an important point here. The next important policy here, National Forest Policy of 1950. There is the most important policy here. National Forest Policy of 1950 was revised in 1988 to make on effective tools as per current need to be protection, conservation and development of forest in a country. Under this policy, social forestry scheme was launched to increase a green coverage is a produce and supply of fuel, wood, etc. There is a second point is the most important. National Forest Policy of 1950 was received in 1988. And next year, National Land Use and Conservation Board were established in 1983. This is important. National Land Use and Conservation Board were established in 1983 and restructured in 1985 for the land resource conservation and preparation of prospective plan for optimum utilization of land resource here. There is an important point. The National Water Policy was adopted in 1987, which accord to be high priority to drinking water flowing by irrigational hydropower generation and investigational industries and other use of water important here. The next point is the most important here. Our national mineral policy formed in 1990 has allowed to the board domestic and foreign enterprise to be invest in a mineral extraction and export here. It is also allowed the authority to the permit investment in a mineral extension directly under the Union Ministry of Mines. There is an important policy here. A new agriculture policy of encouragement in a giving to use eco-friendly and sustainable agriculture technology is a biotechnology. There is a most important point here. The National Forest Policy has been to the launching for the protection and development of forests. There is a most important point in the box. Note down your notebook. The National Forest Policy has been to launch it for the protection and development of forest. The next point here, National Water Policy was adopted to the conserve and preserve water resource. And next year, new agriculture policy places a primary use of biotechnology here. हमारा अगला पॉइंट जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, संसाधन संरक्षण पर नीति। देखिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है यहाँ पर कि पर्यावरण संरक्षण चेतना के विकास के साथ भारत जैसे विकासशील देशों के लिए संसाधनों का जो है कुशल उपयोग महत्वपूर्ण हो गया है। नए संसाधनों की खोज जो है कचरे के कम से कम करने की तकनीक और अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के लिए हमें अपने अनुसंधान और विकास के प्रयत्नों को बढ़ाना पड़ेगा। कहते भारत सरकार ने हमारे जैविक अजैविक साधनों के संरक्षण के लिए जो है कई योजनाएं बनाई हैं। वह कार्यक्रम को जो कार्यबद्ध भी किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है।
पहला कार्यक्रम तो यही बनाया गया कि राष्ट्र में वन एवं पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को जो है उच्च प्राथमिकता देने के लिए जो है सन 1980 में केंद्रीय स्तर पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय बनाया गया था। और आज अभी सभी राज्यों जो सरकार ने भी वन एवं पर्यावरण का जो है स्वतंत्र मंत्रालय बनाया है। लेकिन कहते हैं सरकार ने हर चीज़ तो बनाया है, लेकिन इसका सही उपयोग अभी तक देखने को नहीं मिला है। उसके पश्चात 1950 के राष्ट्रीय वन नीति को राष्ट्र के तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुसार वनों के संरक्षण, सुरक्षा, विकास के लिए कहते हैं 1988 में संशोधित भी किया गया था। और इस नीति के अंतर्गत हरित क्षेत्र को बढ़ाने, जलाऊ लकड़ी के उत्पादन एवं आपूर्ति आदि के लिए समाज वन की योजना जो है प्रतिवर्तित की गई थी। कहते हैं बनाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। उसके पश्चात आता है भूमि से साधनों के संरक्षण तथा इनके अनुकूलतम प्रयोग के लिए संदर्भ में योजनाएं बनाने के लिए 1983 में राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं संरक्षण बोर्ड की स्थापना भी की गई है। और कहते हैं सन जो है 1985 में इसे पुनः संगठित भी किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि अगली पॉइंट पे हम ध्यान दें, राष्ट्रीय जल नीति सन जो है 1987 में पारित की गई थी, जो सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और नौ संचलन जल के औद्योगिक एवं अन्य उपयोग के अलावा सबसे बढ़कर पेयजल को प्राथमिकता दी गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं अगले पॉइंट जो था बहुत महत्वपूर्ण है कि सन 1990 में बनी राष्ट्रीय खनिज नीति जो है खनिजों के उत्खनन एवं निर्यात के लिए घरेलू विदेशी उपक्रमों के जो है निवेश की अनुमति देती है। केंद्रीय खान मंत्रालय के अंतर्गत प्राधिकरण को यह खनिज जो है उत्खनन में निवेश एवं परमिट के लिए यह अनुमति देता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर नीतियाँ बनाई गई है। उसके पश्चात जो है अंतिम पॉइंट देखिए, नई कृषि नीति में परिमित्र एवं सततवाही कृषि तकनीकी जैसे जैव तकनीक को प्रोत्साहित किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो इस बॉक्स में दिए गए शब्द भी हैं, जिसको आपको अपने कॉपी में नोट करना चाहिए कि वनों की सुरक्षा विकास के लिए राष्ट्रीय वन नीति जो है प्रवर्तित की गई है। जल संसाधनों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय जल नीति पारित की गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं नई कृषि नीति जैव तकनीकों का जो है प्रमुखता से उपयोग और प्रोत्साहित भी करती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण ये भी सारे पॉइंट थे जिसको हमने यहाँ समझने की कोशिश किया। सब के सब जो है वन के ऊपर अपना महत्वपूर्ण स्थान बताते हैं। तो ये चैप्टर जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था पर्यावरण के अंतर्गत, जिसको आपको देखना चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमारा पर्यावरण, हमारे जो है संसाधन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके आपने त्रिपाण सेंटर का हेल्प करना है, और हेल्प करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, जो है लिंक को यूट्यूब से कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। क्योंकि त्रिपाण सेंटर का उद्देश्य यही है कि ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँचे और इस वीडियो का हर एक बच्चा जो है फ़ायदा उठाए। और इसमें जो है आप इसके जो है करीब बन सकते हो, अच्छे आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है शेयर करना है वीडियो को। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कीजिए, क्योंकि जब आपको कोई वीडियो की आवश्यकता होगी, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो दूर दूर तक जो है त्रिपाण सेंटर नज़र नहीं आएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको जो है होम पेज मिल जाएगा। होम पेज पर सारे वीडियो उपलब्ध है। अगर आप क्लास के अंतर्गत वीडियो देखना चाहते हो तो इसके लिए भी प्रावधान है, और प्रावधान ये है कि प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास के अंतर्गत सभी वीडियो को देखिए, समझिए और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।